नहीं हुआ ना। अब ठीक है, पेन दे तू मेरे को, ड्रॉ। ओके, पर ये दूसरा है, ये तो वो है जो अपने करंट अफेयर की क्लास है, अपने वाला नहीं हो रहा है। नहीं अपना है सर। नहीं, हाँ अब अपना है ना। ओके ओके, तो ऑडियो वीडियो को कंफर्म करने दो। हेलो, ओके, ये डोर बंद कर दो। Hello dear learners and aspirants, I am Priyanshu and welcoming you to the early bird IAS. I hope you are well, everything is well at your surrounding, and I hope you are enjoying the sessions that we are providing you. Okay, and just welcoming you to the series 15 step away IAS. Chalo, let me confirm about the audio and video. इस कमेंट सेक्शन को इधर लेके जाओ। Hello, hello, hello. Good evening to all of you. हेलो, कमेंट देखो एक बार, कंटिन्यू नीचे नहीं जा रहा है, इस पर क्लिक करो। हाँ, हेलो 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 जितार्क, चलो, हेलो ऋषिका। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट? एम आई विजिबल और ऑडिबल? Am I visible or audible? Everything is okay? चलिए, चलो, चलिए, हाँ. So in this session, in this series, I'm just welcoming you again to the early bird IAS. This is the first session of the series IAS 15 step away. Okay, and this is going to be the first session of GK. What? No? Yes? Okay. This is going to be the first session. This is going to be the first session of GK. Okay. General knowledge. Okay, from VIP. Okay, clear, everything is clear. Okay, done. So I am Priyanshu Rajpurit and I am your history and GK teacher. Okay, and now in this session we are going to discuss about the GK, and in GK we are going to discuss about the whole GK of India. Okay, so let's start with the awards and honors. Let's start with the awards and honors. So first of all, tell me how the Josh? How the Josh? Hi, hello to everyone. Okay, so let's start our session. The first one is award. The first award, which is the highest order, highest award of the world, highest award of the world, which is the Nobel Prize. Nobel Prize is the highest degree of award globally. इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है, क्या है? इससे बड़ा अवार्ड जो है हमारे पास इस ग्लोबली पूरी दुनिया में नहीं है. बड़े सेलेक्टिव लोगों को क्या है, हाई है, बिल्कुल, चलिए, एंड इट शुड बी हाई टिल योर सक्सेस, टिल योर to be an IS or IPS officer. Okay, so Nobel Prize. When the Nobel Prize started, the Nobel Prize were started in 1901. The first one is the 1901. 1901, and why this? The last category of Nobel Prize,
means the Nobel Prize of Economic Sciences was started in 1969. Okay, then what are the field and which are the fields of Nobel Prize, means कि Nobel Prize में किन किन फील्ड के अंदर या किस किस पर्सन के किस किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है ना, which field. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास the first one is the peace. First one is the peace. If a person do work toward the global peace, ठीक है, लाइक करंट सिचुएशन की जब हम बात करें तो हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट है फिलहाल, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आई विल बी नॉमिनेटेड एंड आई विल बी कन्फर्ड एंड आई विल बी ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज of 2025, but this is not possible. Okay, then second is the literature. Second one is the literature. Third one is the medicine. Fourth one is physics, and fifth one is chemistry. All these category were started in 1901, but this is the only category. Economics, means Nobel Prize of Economics, were started in 1969. Okay, not 68, 1969. Okay, if any doubt then you can comment. Okay, ये कौन है, ये है अल्फ्रेड नोबल. तो नोबेल प्राइज की जब हम बात करें तो नोबेल प्राइज जो है इन्हीं की विल क्या होती है, संपत्ति. इनके पास बहुत सारा पैसा था. क्या था, इनके पास बहुत सारा पैसा था और इन्होंने कहा कि जो पैसा है ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन वर्क में लगना चाहिए. तो इन्होंने क्या है, इनकी डेथ के बाद नोबेल कमेटी फाउंड हुई. नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक प्राइज़ देंगे. क्या प्राइज़ होगा, उस प्राइज़ का नाम रखा गया नोबेल प्राइज़. यहाँ हम एकदम हिंदी के जो बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ में आती है उनके लिए भी है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, और इंग्लिश के लिए भी क्या है, हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर है, चलो. तो नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, नोबेल प्राइज ऑफ द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, नोबेल प्राइज ऑफ पीस, नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस. क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अवार्ड. अवार्ड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास रेमन मैग्सेसे अवार्ड, विच इज गोइंग टू बी द हाइएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर in Asia. Okay, this is the highest degree of honor of Asia. Asia means जिस कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है, जिस कॉन्टिनेंट में क्या है हमारा इंडिया. जियोग्राफी के सेशन जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंडिया जो है अर्थ पे कहीं यहाँ लोकेटेड है, और ये जो एरिया है इस अर्थ का, ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, एशिया. क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा. ठीक है, तो एशिया का क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर. फिर अगर हम बात करें कब स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड इन 1957. इट वाज स्टार्टेड इन 1957. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी एशियाज नोबेल प्राइज. एशियाज नोबेल प्राइज, एंड दिस इज गोइंग टू बी एशियाज नोबेल प्राइज. ओके, देन फील्ड. First one is the government public service. Government public service. Then the social services. Then the social service and journalism. Then literature, communication and international relation. International relation. Okay. Then the international relation understanding. अच्छा, ये लाइन यहाँ आ गई. ओके, कोई नहीं. इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम 1957, एंड ऑल दीज कैटेगरीज वर स्टार्टेड इन 1957. क्लियर, ओके, ऑल दीज कैटेगरीज वर स्टार्टेड इन 1957. क्लियर. अब हमारे पास क्या हो गए, यहाँ आ गए हमारे पास, डिस्कस कर लिया हमने रेमन मैग्सेसे अवार्ड. क्या हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड. ठीक है. अब फर्स्ट जो इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज वाज रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, लेट्स सी अवार्ड. नेक्स्ट इज द भारत रत्न अवार्ड, विच इज गोइंग टू बी इंडियाज हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर
and it is going to be India's highest civilian award. Okay, which started on 2nd June 1954. Started on 2nd January 1957. Okay, then the field is the for outstanding contribution. मतलब बहुत बढ़िया आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. यू हैव टू कंट्रीब्यूट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल. ओके, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, in the field of literature, in the field of science and public services. Okay, these are the domains of Bharat Ratna, and it is the India's highest civilian award. Why civilian? Because India have the military award also. Okay, we will discuss Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra. Okay, all these awards. Next one. Next award is Saraswati Samman Award, which started in 1991. Saraswati Samman Award, which started in 1991. Okay, this is going to be Saraswati Samman. Okay, then literature. The field is the literature. Okay, सरस्वती सम्मान जो है कहाँ मिलता है, लिटरेचर की कैटेगरी जो है हमारी, उस लिटरेचर कैटेगरी के अंदर हम क्या है, इंडिया के अंदर हमारी क्या है, सरस्वती सम्मान जो मैं कहूँगा यहाँ पर फाउंडेशन है वो कन्फर्ड करती है लोगों को. ओके, नेक्स्ट वन, भारत रत्न क्वेश्चन. भारत रत्न के हाँ, इस क्लास के एंड होने के बाद, जैसे हमारी ये क्लास एंड होगी उसके बाद आपको एक क्विज मिल जाएगी. ठीक है, एक क्विज सेक्शन मिलेगा. क्विज सेक्शन आपके लिए कल ओपन हो जाएगा. भारत रत्न से रिलेटेड आज जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, अपनी नेक्स्ट डे के टेस्ट में आपको मिल जाएंगे. उन्हीं का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस. ओके, प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. ओके, लेट्स सी the next award. The next award is the Vyas Samman, which is going to be also again of the India's Vyas Samman. Started in 1991 by KK Birla Foundation Group. By KK Birla Foundation. By KK Birla Foundation. Okay. Then field again literature. Literature is the field of of the award name Vyas Samman, started by KK Birla Foundation. Next one. Next we will discuss about the Bharat Ratna Award. So अब हम देख लेते हैं हमारे इंडिया में किन किन पर्सन को क्या है, भारत रत्न अवार्ड जो है कन्फर्ड किए गए हैं, मतलब किन किन को ऑनर मिला है हमारे भारत रत्न अवार्ड से. सर नोट्स कैसे बनाए लेक्चर में. देखो नोट्स की जब बात करें ना, देखो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि वो लेक्चर के साथ साथ नोट्स नहीं बनाता, वो लेक्चर के साथ साथ अपने एक रफ नोट्स बनाता है. जैसे जो एक्स्ट्रा जो बताएंगे, जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये याद रखना है, तो कुछ ईयर लिख दिए भाई 1991 में क्या है इतना लिख दिया, सरस्वती सम्मान SS करके SS 1991 ऐसे. फिर जो है हमारे पास KK बिरला. हमें कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने हैं लेक्चर के साथ साथ. लेक्चर एंड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे. वापस से एक बार देखना, इससे क्या होगा, एक बार रिवीजन होगा, उसके साथ साथ नोट्स बनाने. लेक्चर के साथ अच्छा स्टूडेंट कभी नोट्स नहीं बनाता है. ठीक है, और फिलहाल आपको नोट्स नहीं बनाने. वैसे आपको ये PDF भी मिलेगी, इसकी क्या है PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट फिलहाल आप ना एक रफ कॉपी लेके बैठो, साथ में एक पेन लेके बैठो, जो स्लाइड पर जितना आप लिख पा रहे हो स्लाइड के साथ साथ उतना लिखो. एक्स्ट्रा अभी फिलहाल कोई ट्राई मत करो. ठीक है, क्लियर. सर सोशल को याद कैसे रखे, रिविजन इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द सोशल स्टडीज. और जब आप लेक्चर्स देखोगे, जब आप बैच के अंदर इनरोल हो जाओगे, वैसे आपको यहाँ भी मैं आपको हिस्ट्री से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको और इंटरेस्टिंग तरीकों से है ना आपको बताने की कोशिश करूँगा. चलो देखो अभी आ जाओ. देखो
अब हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड की। तो यहीं से हमारी क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास जो है रिसिपिएंट, जब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो कौन है, चक्रवर्ती। वैसे तो पहले जो हमारे पास क्या है रिसिपिएंट, जब 1954 के अंदर स्टार्ट हुआ हमारा क्या है भारत रत्न अवार्ड, तो यहाँ हम कहेंगे ये कौन है, सी राजगोपालाचारी। कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर, इन्हें जो है पहली बार क्या मिला था, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, कोई भी डाउट हो सर, हाउ मेनी पीपल्स गेट भारत रत्न का ना ऐसा कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इतने ही लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे पद्म अवार्ड जो है हमारे इंडिया के अंदर, पद्मा अवार्ड जो है, पद्मा अवार्ड को क्या है 120 पीपल या पर्सन अ ईयर, पर ईयर। फिर इसके अंदर एक्सक्लूड किन्हें किया गया, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो हमारे पास क्या है एनआरआईज है। ठीक है, इनको अलग रखा गया है। गुजराती में भी लेक्चर हैं, आप गुजराती वाले सेक्शन के अंदर जाइए, आपको गुजराती में भी लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, किस बात के लिए आप हिनल विकास चौहान क्या पूछना चाह रहे हो आप, क्वेश्चन में आया आपके, है ना। चलो हाँ, देन आता है हमारे पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सेकंड रिसिपिएंट। और ये कौन है हमारे पास, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वीपी ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट, है ना, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट आओ। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास, मैं यहां से रिमूव करता हूं पद्मा अवार्ड, आप नोट कर लेना। ठीक है, बिकॉज यहां हमारी फोटो आने वाली है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, चंद्रशेखरन वेंकट रमन, यानी सीवी रमन। ये कौन है, सीवी रमन। चलो, अब पहली बार जब अवार्ड स्टार्ट हुए थे, है ना, तो इन लोगों को रिसिपिएंट का मतलब जैसे प्राप्तकर्ता, है ना, जिसको अवार्ड दिया जाता है, जिसको अवार्ड दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, रिसिपिएंट। कन्फर्ड मतलब होता है ऑनर करना, सम्मानित किया जाना। ठीक है, चलो ओके, ये कौन है, सीवी रमन। कंट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, साइंस में आप लोग रमन इफेक्ट पढ़ोगे। फिर ये कौन है, ये हमारे कहेंगे हम लोग क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, सॉरी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट। और ये हमारे पास कौन है, सी राजगोपालाचारी, जो क्या एक फ्रीडम फाइटर है। हिनल विकास, आप नो का कमेंट कर रहे हैं, किसके लिए। चलो नेक्स्ट आओ। देखो कुछ कमेंट जो है बहुत जल्दी चल रहे हैं, तो अपने ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास क्या है, डॉक्टर, जो हमारे क्या है भगवान दास। फिर देन नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, मोक्षगुंडम, यानी एम विश्वेश्वरैया, है ना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। देन नेक्स्ट वन इज दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे कुछ एमिनेंट पर्सन बता रहा हूँ, जिनको क्या मिले हैं, भारत रत्न अवार्ड से क्या है सम्मानित किया गया है। इन्हें क्या है, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, सरदार पटेल। सरदार पटेल की जब हम बात करें, फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें डेथ के बाद, यानी पॉस्ट्यूमसली क्या है, जो है अवार्ड दिया गया था। सरदार पटेल, है ना, गुजरात के पटेल साहब। ठीक है, गुजरात के पटेल साहब। फिर हमारे पास है मोरारजी देसाई, ये हमारे पास कौन है, मोरारजी देसाई। देन नेक्स्ट वन इज राजीव गांधी जी ने भी क्या है पॉस्ट्यूमसली, इनकी डेथ के बाद क्या है, इनको हम बात करेंगे कि भाई अवार्ड दिया गया, भारत रत्न से इन्हें क्या है नवाजा गया, फिर सम्मानित किया गया था। क्लियर है, चलो देखो अभी हमें ना आज की इस क्लास में बहुत कुछ सीखना है, तो फिलहाल हम थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं, अपने कमेंट एक बार के लिए रोको, ताकि आप लोग कुछ फोकस कर पाओ क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे, यस नो हेलो हाय, सभी एक बार के लिए रुक जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है ना, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, ये कौन है, ये हम कहेंगे हमारे फर्स्ट जो है कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर नेक्स्ट हम होते हैं सत्यजीत रे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए।
फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने का, फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो वो किन्होंने की है, सत्यजीत रे सर ने किए हैं। फिर आते हैं पास क्या है, हाँ JRD टाटा, कौन है JRD टाटा, जहांगीर रतनानजी दादा भाई, यानी JRD टाटा, जिन्होंने इंडियन एविएशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए। टाटा फाउंडेशन ट्रस्ट की जो क्या है फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। सर कैन नॉन इंडियन रिसीव, रिसीव, यस इट इज पॉसिबल, ओके इट इज पॉसिबल। नॉन इंडियन ऑल्सो गेट दी भारत रत्न अवार्ड। डॉक्टर अबुल पारिक जैनुबुद्दीन, APJ अब्दुल कलाम। पॉस्ट्यूमस मीनिंग हो जाएगा किसी को डेथ के बाद, एक तो होता है जिंदा अवार्ड देना, भाई वो पर्सन जिंदा है और उन्हें क्या है अवार्ड दिया गया, एक होता है किसी की डेथ के बाद उनके परिवार को अवार्ड देना, इट इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमसली, ओके। एंड गुलजारी लाल नंदा अगेन पॉस्ट्यूमसली, ये भी क्या हमारे XPM। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, अरुणा असफ अली एक्स, ठीक है, हमारे पास क्या है अरुणा असफ अली जी नेक्स्ट रिसिपिएंट। अब ये सारे रिसिपिएंट नहीं है, अभी हम यहाँ पर क्या है एक जल्दी ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कोर्स के अंदर अगर आप आओगे तो वहाँ आपको एक एक पर्सन के बारे में, उनके अचीवमेंट, उनको क्या क्या किस कारण से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ही वाज ऑनर्ड एंड शी वाज ऑनर्ड बाय द भारत रत्न अवार्ड, ये सारी बात हमने डिस्कशन किया है। बट अभी फिलहाल हमें क्या है बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी है, दैट्स वाई आई एम जस्ट little bit faster, okay. Then next one is the PV Narasimha Rao, okay, PV Narasimha Rao. Then Chaudhary Charan Singh again posthumously, the both are the XPM, and the third is the LK Advani, okay. अब ये क्या है सबसे लेटेस्ट हमारे 2024 के अंदर, 2024 में जिन्हें अवार्ड से क्या है हम कहेंगे कन्फर्ड किया गया, फिर ऑनर्ड किया गया है, दे वर ऑनर्ड। मीनिंग ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य, ओके, लिटरेचर मीनिंग साहित्य। 2024 के अंदर फर्स्ट वन इज द PV नरसिम्हा राव पोस्टुमसली, देन दी चौधरी चरण सिंह पोस्टुमसली, एंड LK आडवाणी also received the award, okay. And then Karpuri Thakur, again he also received the honor of Bharat Ratna award in 2024, okay. This is the question based on your current affairs. And last one is the Dr. MS Swaminathan, ठीक है, posthumously, okay. They all are the prominent person, they all are the famous person who received the Bharat Ratna award, clear. नेक्स्ट वन इज दी गैलेंट्री अवार्ड। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस जो है LK आडवाणी जी कौन है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बोल दो, LK आडवाणी जी है ना। भी जस्ट मोदी जी आए थे, मोदी जी से पहले अगर कोई बीजेपी को संभाल रहे थे तो वो कौन थे, LK आडवाणी जी, है ना। जैसे ही मोदी जी आए तो LK आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया गया है। और गुजरात में तो बहुत जानते हैं इनको लोग, चलो हाय। हाँ, नेक्स्ट आता है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड क्या है, ये सब है मिलिट्री अवार्ड। द अवार्ड इज कन्फर्डेड टू दोज पर्सन हु शो देयर ब्रेवरी, who shows their bravery in the battlefield or at the presence of enemy। जब भी हम बात करेंगे एनिमी बहुत ज़्यादा है, एनिमी जो वॉर लाइक सिचुएशन है या फिर पीस लाइक सिचुएशन के अंदर, जब पूरे देश के अंदर क्या शांति है, उस टाइम में क्या है, उस टाइम में क्या है जब अवार्ड कन्फर्ड किए जाते हैं, उस समय जो ब्रेवरी दिखाते हैं उनको अवार्ड जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड। पॉस्ट्यूमसली मतलब हो जाएगा हमारे पास, पॉस्ट्यूमसली मतलब किसी की डेथ के बाद। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत जो है काम किया है। एक ऐसा पर्सन जिसने बिहार को ना पूरी कोशिश की थी कि हम बिहार को वापस मगध तक पहुंचाएं, है ना। मगध जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मगध के अंदर किस तरह सा बिहार था, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, उस बिहार को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा बिहार के स्टार्टिंग से है ना बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, ठीक है। और ये बिहार के ex-CM भी। अब आज हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड या फिर जिन्हें हम कहते हैं वीरता पुरस्कार, ठीक है। पॉस्ट्यूमसली हो गया वंशिल पटेल के, यानी किसी की डेथ के बाद। हाँ, गैलेंट्री अवार्ड को मिलिट्री अवार्ड बोल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके।
क्लियर है? अब हम चले गैलेंट्री अवार्ड पे, आ जाओ। तो फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की जब मैं बात करूं तो दिस इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। हेलो हाय, चलो। हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर द वैलोर इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। और ये अवार्ड तभी मिलता है जब क्या हो, हम वॉर सिचुएशन के अंदर हो। क्या है? जब हम वॉर सिचुएशन के अंदर हो तभी क्या है, ये अवार्ड जो है कहेंगे हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उन्हें दिया जाता है। ठीक है, फिर ये जब हम बात करते हैं कि किस मटेरियल का बना होता है ना, वैसे मटेरियल से हमें वंसल मैंने बताया ना, जो है पोस्टुमसली का मतलब होता है किसी की डेथ के बाद उसे कोई अवार्ड देना, उसे कोई ऑनर देना, इट इज कॉल्ड पोस्टुमसली अवार्डेड। ठीक है, पोस्टुमसली अवार्डेड। अब देखो मटेरियल की जब मैं बात करूं तो ये जो है परमवीर चक्र, इसका मटेरियल होता है ब्रॉन्ज, बट ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अवार्ड। वैलोर मतलब बहादुरी, ठीक है, वैलोर मतलब बहादुरी, वीरता। ठीक है, हाँ, बहादुरी दिखाते हैं वो भी कहां पर, जब आपके सामने शत्रु हो, शत्रु के सामने बहादुरी दिखाने पर क्या मिलता है, हम ये कहेंगे हमारा परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, चलो। मैंने बता दिया कर्पूरी ठाकुर कौन है, अब आप फिर बार बार, ठीक है। हाँ, 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्राज वज्र। अब जब हम बात करते हैं हमारी, जैसे यहाँ फोटो, हाँ ये रही देखो फोटो, यहां पर क्या है, 4 रेप्लिका है, किसकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ। देयर आर 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्राज वज्र, यानी इंद्र भगवान के आपने वज्र देखा है ना, जब इंद्र भगवान ऐरावत पे बैठते हैं पुराने टाइम में, रामायण महाभारत अगर देखिए तो उसके अंदर इंद्र भगवान एक सफेद हाथी पे बैठ के आते हैं और एक जैसे क्या करते हैं, उनके हाथ में हड्डियों का कंकाल होता है, उसे कहते हैं वज्र, है ना। कुछ फिर नए नए सीरियल्स के अंदर क्या चेंज कर दिया, उसे डमरू लाइक शेप दे दिया, कुछ ने उसे इन्फिनिटी लाइक शेप दे दिया, पर वही क्या है, वज्र यहाँ पर क्या है, बने हुए। और ये कुछ ना वज्र क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, क्या होता है, इट इज, और यहाँ पर क्या है, इस तरह से अलग से ये होता है हमारा वज्र। तो यहाँ पर क्या है, वज्र की क्या है, 4 रेप्लिकाज बनी हुई हैं। और क्या बना है, अराउंड दी स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम क्या है भाई हमारा, this is GK, but the class in the history section, okay, क्लास जो है बाय मिस्टेकन आपकी हिस्ट्री सेक्शन के अंदर आ गई, बट डोंट वरी। रेप्लिका मतलब चित्र, रेप्लिका मतलब चित्र, ओके, रियल वाला वज्र नहीं, चित्र है, चित्रांकित किया गया है। ठीक है, चलो अब देखो, और ये कहां पर है, यहां पर हम कहेंगे हमारा क्या है, स्टेट एम्बलम। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ स्टेट एम्बलम क्या है। सो डू ऑल दीज अवार्ड गेट इनफ पब्लिक रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस। देखो पब्लिक रिकॉग्निशन तो नहीं मिलती और ना ही अवेयरनेस मिलती है, बिकॉज पब्लिक डोंट नो, द पीपल डोंट नो द विच अवार्ड इट कन्फर्डेड इन विच कैटेगरी and who were honored this year, who were honored last year, who were just recommended for the honors and awards, okay, because public have no interest, because okay, that's why there is no proper recognition and no awareness. Sir, this written in books, yes, everything I'm speaking, I'm writing is written in the book, ओके, एवरीथिंग। ठीक है, 4 लायंस, ओके, चलो, बट इट इज कॉल्ड अशोक स्तंभ, इट इज कॉल्ड अशोक स्तंभ, ओके, एंड यू कैन से दी लॉन पिलर, ओके, स्टेट एम्बलम इज अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, हाँ, यस यस, मौर्य सांची, बिल्कुल करेक्ट। रिवर्स की बात करें, पीछे की साइड क्या होगा, एक तरफ तो क्या है 4 वज्र हैं और बीच में क्या है, हम कहेंगे यहाँ पर नेशनल एम्बलम है, लेकिन पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ हम कहेंगे यहाँ पर वीर चक्र, क्या लिखा है, परमवीर चक्र इन हिंदी
एंड इंग्लिश विद 2 लोटस फ्लावर्स। और ये क्या है, फ्रंट फोटो है। फ्रंट फोटो में यहां देखो, अगर आपको मैं बताऊं, जूम करता हूं मेरे को इसको, देखो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, आई थिंक यू कैन सी इट। ओके, अब देखो यहां लिखा है, ऊपर की तरफ क्या लिखा है, परमवीर चक्र, एक लोटस एंड द सेकेंड लोटस, द फर्स्ट लोटस एंड द सेकेंड लोटस, देन अगेन इन इंग्लिश परमवीर चक्र। क्लियर? ये अशोक चक्र की, अशोक स्तंभ, ये रहा क्या है यहां पर, अशोक स्तंभ 1 2 3 4 रेप्लिकास ऑफ वज्र इन दी फ्रंट साइड। ओके ओके, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टेट और जो नेशन है वो सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें कि इंडिया देश नहीं, स्टेट है, इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है। चलो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं किसी भी कंट्री को। ओके चलो, देन रिबन्स की बात करते हैं। ये जो रिबन है ना, ये लेट मी, हाँ ये रिबन, रिबन की बात करें तो क्या है, प्लेन पर्पल रिबन होती है यहां पर। फिर अगर मैं बात करूं तो 3.2 सेंटीमीटर वाइड, क्या है, 3.2 सेंटीमीटर वाइड ये क्या है, रिबन्स होती हैं। क्लियर? यस, ओके ओके। हाँ, हिस्ट्री के अंदर में ना बहुत सारी कहानियां सुनेंगे। हिस्ट्री सिर्फ कहानियां होती है, क्या है, सिर्फ कहानियां हैं, बस कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, उन्हें याद रखना है, और हिस्ट्री नथिंग एल्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टोरीज that you have heard from your grandmothers, from your grandfather, okay? अब उन्हीं स्टोरी को थोड़ा सा हमें क्या है, पढ़ना है, ढंग से देखना है, उनके साथ कुछ ईयर हमें कंसिडर करने हैं। हम जो ग्रैंड मदर बोलते हैं कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं, हमें प्रिसाइज ईयर याद रखना है कि भाई जो बैटल ऑफ प्लासी है विच वॉज फॉट इन 1757 है ना, तो ये हमें एग्जैक्ट ईयर के साथ याद करना है, बाकी कुछ नहीं, कहानियाँ हैं, ठीक है, किससे कहानियाँ ही हिस्ट्री है। क्लियर? आ जाओ, देन नेक्स्ट वन इज दी महावीर चक्र, है ना, नाम में साउंड आना चाहिए, क्या है, परमवीर चक्र। एक बार बोलो, आप अपने घर पे बैठे हो ना, अभी घर पे ही हो ना, तो बोलो एक बार परमवीर चक्र। थोड़ी सी ना एक हायर साउंड आता है, एक ऊंची आवाज आती है, इसका मतलब क्या है, सबसे ऊपर अवार्ड, थोड़ा सा क्या है, महावीर चक्र, वीर नहीं, महावीर, क्या है, महावीर चक्र। और ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी दी सेकंड हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर द गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, किनके लिए, जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनके लिए, कहां पर, किसकी प्रेजेंस में, जब एनिमी हो, जब दुश्मन आपके सामने हो। ओके, हाँ पटेल जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। ओके, ओके, थैंक यू, ठीक है, आ जाओ। अब यहां देखो साउंड आता है महावीर चक्र, थोड़ा सा साउंड भारी है ना, मतलब क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेवरी शो की होगी, कहां पर, दुश्मनों को एकदम बुरी तरीके से मारा होगा, है ना, यूं मतलब पटक पटक के मारा होगा, तो क्या मिलता है इन्हें, महावीर चक्र मिलता है। महावीर बोलते तो है ना, अपने क्या है, बजरंग बली को बोलते हैं महावीर, बजरंग बली हनुमान जी को बोलते हैं ना महावीर, तो वैसा ही जो काम करता है, हनुमान जी जैसा जो काम करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, महावीर चक्र। हमारे सैनिक भी बिल्कुल हनुमान जी जैसे, जिस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या मिलता है, महावीर चक्र मिलता है। अब मटेरियल की बात करें तो ये थोड़ा सा एक अच्छे मटेरियल तो अच्छा है, बट एक ऑर्डर है ना। गैलेंट्री मतलब होता है बहादुरी पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, क्या है, वीरता पुरस्कार। ओके, मैं लिख देता हूं, चलो हिंदी में भी लिख देते अपने, तो हिंदी वाले भी अपने पास है, वीरता पुरस्कार।
ओके, अब चलो मैं हिंदी भी लिख दूंगा साथ साथ में। ओके, आपको हिंदी अगर हिंदी के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो मैं हिंदी लिख दूंगा साथ में, डोंट वरी। मटेरियल की बात करें तो क्या है, स्टैंडर्ड सिल्वर यानी चांदी, स्टैंडर्ड सिल्वर, ये क्या है, चांदी का बना होता है अपने। फिर आओ अवार्ड्स की बात करें, उस पर क्या क्या बना हुआ है, तो यहां हो जाएगा 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार। हेराल्डिक स्टार क्या होता है, एक तो स्टार हम इस तरह से बनाते हैं, है ना। अब मैं अगर क्या करूं, वैसे यहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ना अलग से दिखा देता हूं। अगर मैं ये वाला जो बीच का जो पोर्शन है ये हटा दूं तो ये बन जाएगा हेराल्डिक स्टार। क्या है, सिर्फ ये कोने रहने चाहिए, यहां पर येलो हटाते, एक मिनट का, है ना, सिर्फ ये एंड दिस इज गोइंग टू बी द हेराल्डिक स्टार। क्या है, ये हेराल्डिक स्टार है। स्टार और हेराल्डिक स्टार क्या है, अलग अलग होते हैं, यहां फोटो आएगी अभी आपके लिए। अब यहां हम देखते हैं कि इस हेराल्डिक स्टार के साथ साथ 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार विद ग्लिडेड स्टार एम्बलम इन दी सेंटर, और इस हेराल्डिक स्टार के बीच में क्या बना हुआ, हमारा अशोक स्तंभ बना हुआ है। हेराल्डिक स्टार के साथ साथ, हिंदी बोले, चलो हिंदी भी बोलूंगा मैं, हेराल्डिक स्टार के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, यहां पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है एकदम बीच में। हेराल्डिक स्टार के बीच में क्या है, अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ भी यहां पर बना हुआ है। क्लियर। अब पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ वापस जैसे परमवीर चक्र में, परमवीर चक्र और क्या लिखा हुआ था, कहेंगे हम इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ था, वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ क्या, परमवीर चक्र ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी के अंदर, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, वापस सॉरी महावीर चक्र, और महावीर चक्र इंग्लिश में लिखा हुआ है। फोटो देखनी है, एक सेकंड में ना, फोटो पे हमने कुछ लिख दिया है तो फोटो थोड़ा सा मैं, आओ देखो फोटो दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये क्या है, फोटो। सर समथिंग द स्क्रीन गोज आउट ऑफ द फोकस, नहीं वो कैमरा थोड़ा सा जैसे जूम कर दे रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर है, ठीक है, आई कैन सी इट इज क्लियर। अब देखो ये क्या है, 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार है ना। फिर एकदम सेंटर में क्या है, यहां पर यह है अशोक स्तंभ या फिर स्टेट एम्बलम या फिर नेशनल एम्बलम, ठीक है। और ये यहां पर लिखा है महावीर चक्र इन हिंदी एंड महावीर चक्र ऑल्सो रिटन इन इंग्लिश, एंड दिस इज नॉट रिटन, दिस इज कर्व्ड। क्या है, यहां पर कर्विंग की गई है। ओके ओके, okay, don't worry, I will explain both in Hindi and English. Okay, this is the heraldic star. In the center of the heraldic star, this is going to be the state emblem, and in Mahavir Chakra, the first one in the upper side, Mahavir Chakra written in Hindi, and then in the lower side the Mahavir Chakra in English is written. Okay, and 2 lotus. Okay, there are 2 lotus. Next, ribbons की बात कर लेते हैं। ribbons, half white and half orange, half white and half orange. Sir, can the same person get this award twice? Why not? If a person show his bravery for twice, then he can also receive the award again. Okay, the awards are based on the bravery which you have shown, which you will be show in the battleground, on the battleground. Okay, तो twice आप 3 बार ले सकते हो, you can, हाँ, ribbons half white and half orange, हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज। फिर एक बात याद रखना हमेशा, ये जो अवार्ड्स है ये हमेशा आपके लेफ्ट शोल्डर पे होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट शोल्डर। क्या है, ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट शोल्डर पे क्या है, ये अवार्ड हम लोग बोलेंगे यहाँ जो है आपको लगाए जाते हैं, ठीक
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज। हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज, 3.2 सेंटीमीटर वाइड, ऑरेंज नियर टू दी शोल्डर, नियर टू दी शोल्डर। और पहले तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट तरफ लगते हैं, फिर ऑरेंज जो रंग है, ऑरेंज कलर जो है वो क्या होगा, ये इसकी क्या है, फ्रंट साइड है, फ्रंट या फिर फेस, एंड दिस इज गोइंग टू दी बैक। ये क्या है, बैक साइड है। क्लियर? सर ये अवार्ड हैं जो रिपब्लिक डे को मिलते हैं, ये अवार्ड जो है रिपब्लिक डे को दिए जाते हैं, बिकॉज राष्ट्रपति जी, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इन अवार्ड्स को कन्फर्ड करती है। ओके, नेक्स्ट वन, अशोक चक्र, दिस इज द थर्ड ये अवार्ड जो है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को ही क्या है, दिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे क्या है 26 जनवरी को अवार्ड देती है। जैसे अगर हम बात करें 26 जनवरी को, और जो है 26 जनवरी के ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन से अवार्ड, तो हम बात करें भारत रत्न अवार्ड जो कि 26 जनवरी को दिए थे। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड इज ऑल्सो कन्फर्ड on the eve of 26th of January in the eve of the Republic Day. Okay, chalo, and bravery awards are also in the list. Okay, award type in the highest peacetime gallantry award. अब हम बात करेंगे अशोक चक्र जो है वो क्या है, हाईएस्ट अवार्ड है, कहाँ पर, पीस टाइम में, यानी शांति के टाइम में अगर कोई अवार्ड है जो क्या है दिया जाता है। जैसे शांति बोले तो जब वॉर नहीं है तभी तो भी सैनिक अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर बार ब्रेवरी जो है वॉर में ही दिखाई जाए। जैसे कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, है ना, टेररिस्ट आते हैं इंडिया के अंदर, तो उन टेररिस्ट को मारने के लिए, उन टेररिस्ट जो उन रेडिकल एलिमेंट्स को रेडिकलाइज करने में जो सोल्जर्स अपनी जो है रोल प्ले करते हैं, उनको भी क्या मिलता है, अवार्ड दिए जाते हैं। तो उनमें हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, पीस टाइम में, क्या लिखा है, पीस टाइम, अशोक चक्र। ओके, सर माय राइटिंग इज रिमेनिंग। कोई देखो, अब ना एक बात सुनो, पहले तो ना अपनी स्कूल को जो ना, स्कूल जब आप स्कूल के अंदर पढ़ते हो तो आपकी क्या कोशिश होती है कि जो बोर्ड पे लिखा हो जल्दी 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 उतार ले, है ना, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले। ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको बोला एकदम शांति से अपने ईयरफोन लगाओ कान के अंदर और एक रफ नोटबुक लेके बैठो साथ में, सिर्फ रफ वर्क करना है। डू नॉट ट्राई टू मेक योर फेयर नोट्स इन द क्लास, ओके, वाइल द क्लास इज लाइव। लाइव क्लास में कोई नोट्स नहीं बनाएगा, ठीक है, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। अपनी स्कूल की स्टडी के हिसाब से नहीं चलना है हमें, स्कूल से थोड़ा सा अलग है ये, तभी तो आप अलग से आ रहे हो यहाँ पर, है ना। स्कूल सुबह सुबह स्टार्ट होती है 9 बजे, हम क्लास रात को 9 बजे ले रहे हैं, तो क्या है, क्वाइट डिफरेंट है ना, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल। तो यहाँ पर हमें सिर्फ जैसे पीस टाइम अशोक चक्र लिखोगे आप, फिर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये पूरा नहीं लिखना है हमें, नोट्स और शॉर्ट बनने चाहिए आपके, ये शॉर्ट हैं लेकिन और शॉर्ट बनने चाहिए, ठीक है। भव्या प्रदीप, आप गुजराती वाले सेक्शन के अंदर जाइए, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ओके। पीस टाइम मतलब शांति का समय, क्या है, शांति का समय। युद्ध बोले तो इंडिया ने युद्ध की, जब हम बात करें कि इंडिया ने युद्ध कब कब देखे, तो है ना, आप लोग एक काम करो, अपना यूट्यूब चैनल है अर्ली बर्ड IAS का, उसे फॉलो करो, है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आते हैं। उन शॉर्ट्स में मैंने बता रखा है इंडिया ने तो पहली बार युद्ध देखा था हमारे पास 1962 के अंदर, ठीक है, फिर 1965, 1972 एंड 1999 एंड द लास्ट वन इज दी 2025। ये क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन है, और इसमें भी ये चार तो क्या है, कंप्लीट वॉर ही थे। इसे तो हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बोला है, ठीक है, इसे तो हमने क्या बोला है, सिर्फ ऑपरेशन जो है सिंदूर ही बोला है। बट ये चार क्या है, इन चार वॉर के अंदर जिन्होंने क्या है अपने ब्रेवरी दिखाई थी, उन्हें मिले हैं क्या है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। देन इन ईयर्स के अलावा
जो सैनिक ब्रेवरी दिखाते हैं उन्हें सैनिक, यस यू कैन, ओके, you can make your notes after the end of the session. Okay, just start the session again and you can't join, not Gujarati, you can't join. Just refresh the application, then you will be able to join the Gujarati session. Okay, next one, material, glitz gold. अशोक चक्र का जो मटेरियल है वो क्या है? ग्लिट्ज गोल्ड, नॉट गोल्ड, ग्लिट क्या है? ग्लिट्ज गोल्ड. ओके, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, एकदम प्योर गोल्ड नहीं है. यहाँ पर क्या है, इस गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत जो अदर मेटल्स की मिक्सचरिंग की जाती है, इसके अंदर और दूसरे जो धातु है वो मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लिट्ज गोल्ड. फिर आओ, अब यहाँ पर लिखा क्या है? रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र सराउंडेड बाय लोटस वर्थ. क्या है? अशोक चक्र जो है वो क्या है? लोटस से क्या है? सराउंडेड है. ये देखो फोटो, एक सेकंड. अशोक चक्र जो है हमारा, अशोक चक्र है, यहां पर चारों तरफ क्या है? लोटस के साथ क्या है? ये सराउंडेड है अशोक चक्र पर. यस, यू कैन सी द वीडियो, यू कैन ज्वाइन द सेशन आफ्टर द लाइव. ठीक है, आपको रिकॉर्डेड सेशन के अंदर भी ये सेशन मिल जाएगा. और जब आप रिकॉर्डेड भी देखोगे, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी लेक्चर देखते हो, सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ कि सर आप अपने लेक्चर की बात करो, नहीं, अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए जब आपका स्टार्टिंग फेज है, उस टाइम आपको किसी भी टीचर का, नॉट ओनली मी बट एनी टीचर, ठीक है, उनका कोई भी सेशन आप जो है चलते सेशन के अंदर नोट्स नहीं बनाओगे. क्लियर? ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लोग याद रखना. ठीक है, इफ यू जस्ट वांट टू बी सक्सेस, इफ यू जस्ट वांट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन द क्लास. ओके, तो सराउंडेड बाय द लोटस वर्थ. अब रिबन की बात करें, ग्रीन सिल्क रिबन 3.2 सेंटीमीटर वाइड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सेगमेंट बाय एन ऑरेंज वर्टिकल लाइन. देखो होता क्या है, ब्लू स्ट्रैप होती है इस तरह से, और एक ऑरेंज लाइन होती है बीच में, जो क्या है इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है. ठीक है, 2 पार्ट्स में से डिवाइड करने का काम करती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कीर्ति चक्र. दिस इज गोइंग टू बी दी कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री. कॉन्स्पिशियस बोले तो एकदम ऐसी गैलेंट्री जिसे मतलब अचानक से हमें छुप के वार करना है किसी पे, है ना, छुप के वार करना एकदम बड़ी कॉन्स्पिशियस तरीके से, बड़ी रहस्यात्मक तरीके से, है ना, एकदम सरप्राइज अटैक. क्या करना है? सरप्राइज अटैक करना है किसी एनिमी बंकर पे, किसी एनिमी अड्डे पे अगर सरप्राइज अटैक करना है, और उसमें अगर कोई अपनी क्या है ब्रेवरी दिखाता है, तो उसे क्या मिलता है? कीर्ति चक्र मिलता है. स्टैंडर्ड सिल्वर का ये बना होता है. किस चीज़ से? स्टैंडर्ड सिल्वर से ये बना होता है. फिर अगर मैं बात करूँ रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र. रेप्लिका मतलब अशोक चक्र की क्या कुछ फोटो, कुछ क्या है हमारे पास, हमने जो है बना रखी है अशोक चक्र जो सराउंडेड बाय दी लोटस जो है वर्थ. फिर बैक साइड की बात करूं, अशोक चक्र क्या है? हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है. हाँ, यस, नोबेल प्राइज कैन बी वॉन ट्वाइस. ओके, नोबेल प्राइज जो है हमारे पास मिल सकते हैं 2 बार. मैडम क्यूरी, इनको 2 बार मिले हुए हैं, एक फिजिक्स के अंदर, एक केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिबन की बात करें, ग्रीन सिल्क 3.2 सेंटीमीटर वाइड डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 सेगमेंट्स बाय ऑरेंज वर्टिकल लाइन. ये देखो, मैं आपको फोटो दिखाता हूं. ये देखो, ग्रीन स्ट्रिप डिवाइडेड बाय ऑरेंज स्ट्रिप, 2 वर्टिकल लाइन कैसे 3 सेगमेंट के अंदर क्या है डिवाइड किया गया है. और यहां पर क्या लिखा है? कीर्ति चक्र. आई नो दैट यू कांट सी, बट यहां लिखा है कीर्ति चक्र, एंड अगेन यहां पर क्या लिखा है? कीर्ति चक्र. ओके, नेक्स्ट देन दी शौर्य चक्र अवार्ड्स, एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री. कुछ लोग, कुछ हमारे सैनिक ऐसे भी जो सिर्फ बहादुरी दिखाते. सिर्फ बहादुरी दिखाना मतलब सिर्फ बहादुरी दिखाना नहीं. बहादुरी दिखाना मतलब किसी को कहीं गए और बड़ी ब्रेवरी के साथ एलिमिनेट कर दिया, यानी जो दुश्मन है उनको हटा दिया, उनको भगा दिया, फिर उनको मार दिया बड़ी सावधानी से.
जिसमें किसी टाइप की क्या है सिविलियन कैजुअलिटी यानी किसी भी प्रकार के क्या आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ हो, उस टाइम में क्या मिलता है, ये शौर्य चक्र जो है दिया जाता है, शौर्य चक्र दिया जाता है। ओके, मटेरियल की बात करें, शौर्य चक्र इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ओके, देन ओवर्स एंड रिवर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, सेम एज दी अशोक चक्र। अशोक चक्र का मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसके साथ क्या है लोटस जो है कनेक्टेड है, ठीक है, लोटस कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर बैक साइड की जब मैं बात करूँ तो शौर्य चक्र क्या हिंदी में लिखा है और शौर्य चक्र इंग्लिश में लिखा है। ओके, ये है हमारे पास हमारे ब्रेवरी अवार्ड्स। कैन सिविल सिटीजन और पुलिस कैन रिसीव, नहीं, these awards are only and only for the military। ओके, मिलिट्री के लिए। पुलिस, वैसे पुलिस का ना देखो, अब बात ये आती है ना पुलिस जैसे मिलिट्री है या नहीं है, पुलिस मिलिट्री है बट स्टेट की है, स्टेट कभी भी वॉर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, स्टेट कभी वॉर के अंदर इंक्लूड नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अवार्ड जो है कौन कौन से अवार्ड, अगर हम बात करें अशोक चक्र, अगर हम बात करूँ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये जो है अवार्ड क्या है पुलिस वालों को भी दिए जा सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, जब अजमल कसाब आया था, याद है मुंबई अटैक, ताज अटैक पर, तो उस टाइम अजमल कसाब को पकड़ने वाले कौन थे, हमारे ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स थे, तो उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो कौन से परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र वो भी मिलते हैं, बट वो ना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, अगर इन्वॉल्वमेंट आता है उनका तो उन्हें भी क्या है ये अवार्ड मिलता है, बिकॉज ब्रेवरी होती है, ठीक है। सिविलियंस को ये अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है, सिविलियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। ओके, चलो, रिबन क्या है, ग्रीन सिल्क 3.2 सेंटीमीटर वाइड, 3.2 सेंटीमीटर वाइड, डिवाइडेड इनटू द 4 इक्वल सेगमेंट, 1, 2, 3 and 4 segment by 3 orange vertical lines, and this is the शौर्य चक्र। ये क्या है, शौर्य चक्र की फोटो आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आइए। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, कई बार कुछ सैनिक गए और क्या हुआ, पहाड़ पे कुछ लोग बैठे हैं, दुश्मन बैठे हैं, उनको सिर्फ गोलियां चला के आ गए, उनको डरा के आ गए, है ना। तो क्या करती है आर्मी जो है अपने अंदर, जैसे ना बटालियन होती है, बटालियन क्या करती है, कुछ बटालियन अपनी तरफ से अवार्ड देती है, रेजिमेंट अपनी तरफ से अवार्ड देती है। उन अवार्ड को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सेवा मेडल। क्या बोलते हैं, सेवा मेडल। क्या है आपके पास, शौर्य चक्र है, क्या है आपके पास शौर्य चक्र। तो देखो पहला आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM, फिर आता है अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM, देना आता है विशिष्ट सेवा मेडल यानी VSM। अब परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी किसी ने अपनी रेजिमेंट के लिए, किसी ने अपनी बटालियन के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। इफ समवन या एनीवन सेव हिज बटालियन, अपनी बटालियन को बना लिया है ना, अपनी बटालियन को बचा लिया किसी बड़ी ट्रेजेडी से, तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब आ जाओ अवार्ड की बात करें, डिस्टिंग्विश सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस। अब उनकी जो सर्विस है, जैसे अब हम लोग कहते हैं ना स्टूडेंट है, हमारी सर्विस क्या, आपकी सर्विस क्या, स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट आप सब काम बढ़िया करते हो, होमवर्क अपना टाइम से करते हो, अपनी कॉपी चेक टाइम से करवाते हो, अपनी राइटिंग अच्छी रखते हो, अपनी जो स्कूल ड्रेस है उसे नीट एंड क्लीन रखते हो, ये क्या है आपकी डिस्टिंग्विश सर्विस है। वैसे ही आर्मी पर्सन्स की डिस्टिंग्विश सर्विस क्या होती है, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी बटालियन के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए क्या है, अच्छी जो है अच्छे इमोशन रखना, अच्छी भावना रखना और ऑलवेज स्टैंड फॉर देयर हेल्प, उनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहना, यही क्या उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस है। और ये आर्म्ड फोर्सेस को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आर्म्ड फोर्सेस मींस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देन दी हमारी क्या होम मिनिस्ट्री जिन्हें अंडरटेक करती है, कौन कौन सी हमारे पास, जब बोलेंगे CRPF, ITBP, SSB, देन BSF, ठीक है, ये सब जो है हमारी CISF, इन सबको भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। व्हाट इज बटालियन, जैसे आपकी क्लास होती है
है, आप 6th क्लास के अंदर हो, आप 6A के अंदर हो, आप 8th क्लास में अंदर हो, वैसे ही आर्मी ने अपने लोगों को डिवाइड कर रखा है बटालियंस और रेजिमेंट में। क्या है, सेक्शन है उनके कि ये बटालियन है, यानी 400 लोगों का एक ग्रुप है, 400 पीपल का एक ग्रुप, उसे बोलेंगे बटालियन। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पीवीएसएम गोल्ड का होता है ये, एवीएसएम की बात करें तो स्टैंडर्ड जो सिल्वर का होता है, और वीएसएम क्या होता है हमारे पास, ब्रॉन्ज का। ठीक है, ये क्या है, मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। क्लियर। नेक्स्ट वन, यहां क्या लिखा होता है, 5 पॉइंटेड स्टार होता है, दिस इज नॉट हेराल्डिक स्टार, यहां पर हेराल्डिक स्टार नहीं है। क्वेश्चन याद रखना, सेवा मेडल्स की बात करें, सेवा मेडल्स में सिर्फ क्या है, स्टार है 5 पॉइंटेड, यहां पर हेराल्डिक स्टार नहीं है। ब्लैक कमांडो, बिल्कुल वो ब्लैक कमांडो अलग से हैं, बटालियन के अंदर नहीं। ठीक है, चलो फिर आते हैं यहां पर पीछे की तरफ, क्या है, लॉयन कैपिटल, यानी हम कहेंगे हमारा जो है अशोक स्तंभ। वापस रिबन की बात करें, गोल्डन विथ डार्क ब्लू स्ट्रिप, गोल्डन विथ डार्क ब्लू स्ट्रिप, 1 फॉर द पीवीएसएम, 1 फॉर द पीवीएसएम, 2 फॉर द एवीएसएम एंड 3 फॉर द वीएसएम, 3 for the VSM। नतालिया, व्हाट इज दिस। चलो अब आते हैं पास, क्या है, मोशन पिक्चर अवार्ड, मोशन पिक्चर अवार्ड। क्या भाई, क्या लग रहा है, क्लास को और कंटिन्यू करें या फिर आपको क्या लगता है बंद करनी चाहिए अभी, बताइए। हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम चलेंगे, बताइए, क्लास कंटिन्यू करें या फिर बस सर आज के लिए बहुत है। आज हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हमारे ब्रीफली। बोलिए क्या करना है, इज इनफ है। हाँ, अब आप लोग मुझे बताइए, एक तो भी सबसे पहले तो क्या आप जो है कौन सी क्लास के अंदर हो फिलहाल, फिलहाल आप कौन सी क्लास के अंदर हो, आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हो, बताइए। देखो कुछ बोल रहे हैं बस, कुछ बोल रहे हैं कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। चलो हाँ, और ऐसे ही लेक्चर आपको कंटिन्यू 15 दिन तक मिलेंगे, ये तो है ही। उसके बाद आप बैच ज्वाइन कर लें, है ना, जो बैच जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, हमारा फेज 0, उस फेज 0 के अंदर आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें और मिलेगी आपको। यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत और कम है ना, एक लेक्चर के अंदर बहुत सारा इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। 9th ओके, 7th ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी मच अवेयर अबाउट द फ्यूचर। चलो ओके, मुझे पता ही नहीं था जब मैं 6th में था कि मुझे IAS बनना है। यू हैव अ क्लियर विजन एंड आई होप, आई विल प्रे टू द गॉड दैट यू जस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके ओके, चलिए देखो कंटिन्यू, हम मिलते रहेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, वेरी गुड। चलिए इसी स्पिरिट के साथ अपनी जो है तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। ओके ओके, 12th कॉमर्स, ओके वेरी नाइस। ओके 10th 12th, ओके ओके। चलिए तो आज जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है आपकी फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट डे से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे। और हाँ, इस अब तक हमने जो पढ़ा है उस पे बेस पे कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टेस्ट मिलेगा, उस क्वेश्चन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ, हाउ मच आई लर्न फ्रॉम दी क्लास। ठीक है, अब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एक थोड़ी देर रेस्ट करना, 15 मिनट, मैं जो बता रहा हूँ वो करना, 15 मिनट्स का रेस्ट लेना, उसके बाद अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करना। वैसे आपको PDF मिलेगी, बट योर ओन नोट्स इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाओगे। चलो
वी वांट सच, ओके। हाँ देखो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपके पास एक नंबर देता हूँ मैं आपको, उस नंबर पे आप ना कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चाहिए। ओके आई एम जस्ट, हाँ ये नंबर दिख रहा हूँ मैं आपको 7069। देखो अगर आपको अर्ली बर्ड आईएएस प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने एक बार पेरेंट्स से, अपने जो गार्जियंस हैं उनसे बोल के इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लें, ठीक है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया है, अपने फ्रेंड्स को भी इस क्लास के बारे में आप लोग बताओगे और उन्हें ये बताओगे, क्लास के बारे में बताने से पहले उन्हें ये बताओगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है ना। हमने सीखा आज अल्फ्रेड नोबल ने क्या स्टार्ट किया था भाई, बताइए। पीडीएफ सेक्शन के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। अल्फ्रेड नोबल ने क्या स्टार्ट किया था, एक नोबल प्राइज स्टार्ट किया है ना। अल्फ्रेड नोबल की विल से क्या स्टार्ट हुआ, नोबल प्राइज स्टार्ट हुआ। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, है ना। जल्दी एक क्विक रिवीजन, वापस छोटा सा रिवीजन। देखो कब हुआ भाई नोबल प्राइज स्टार्ट, कब हुआ, व्हेन द नोबल प्राइज वाज स्टार्टेड, व्हेन नोबल प्राइज वाज स्टार्टेड, नोबल प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो अब ना आप लोग बताओगे अपने फ्रेंड्स को जाके कि देखो हमने आज क्लास के अंदर क्या क्या सीखा है ना। व्हेन नोबल प्राइज वर स्टार्टेड, बिल्कुल करेक्ट, नोबल प्राइज, अल्फ्रेड नोबल ने क्या स्टार्ट किया, नोबल प्राइज स्टार्ट किया था, है ना। नोबल प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, अब ईयर बताओ मुझे। बिल्कुल करेक्ट, नो आ रहा 1906 नहीं 1901, ओके करेक्ट द मिस्टेक, नॉट इन 1991, 1901 and 59 is not correct, 69 is correct, okay very good very good। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़े से क्लियर नहीं है डाउट, तो एक बार वापस देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर रहा होगा, बिल्कुल, तो अपना वीडियो एक बार वापस देखना है। और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, ओके यू आर जस्ट क्या ना मचा रहे हो एकदम मस्त, बढ़िया बढ़िया से प्रिपरेशन करो। और इसी टाइम पे आपको डेली लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ओके। तो अपना जो इंटरनेट है उसे बचा के रखो, है ना, बाकी जगह पे खर्च नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है अपने फ़ोन में, और बढ़िया क्या है स्टडी करनी है अपने लाइफ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, ओके। चलो एंड आई एम प्रियांशु शाइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।